another set of questions on coordination compounds based on BBT and CFT. So I guess we can begin. I certainly want somebody, to just confirm that my voice is loud and clear, and we'll want to wrap it up very quickly. Hope you all have a hard copy of the problem we sheet. can hear you. Yes, sir. And we'll want to begin with question 1. Question 1, hybridization and magnetic behavior of cobalt in C1sp6 plus 3. So this cobalt plus 3, this is cobalt plus 3 with a configuration 3d6. Ammonia here acts as a strong field ligand, and strong field ligand will mean, it's all paired up. And if it's paired up, it will be having the D available, the 3D available. It's 3D2 mein aayega lone pair, sp3. At any point of time, you have a doubt, you can stop me, else, we'll want to move at a faster pace. D2sp3, diamagnetic all paired up. Option C, Calcutta. Are you all there with me? 1C, Calcutta. Bacche log हाँ ना बोलो. Yes, sir. We'll want to move to question 2. Ferricyanide. A few things we'll want to confirm right away. Fe plus 3 is 3d5. Inner orbital complex, ignoring the pairing energy. Naturally, we'll ignore the pair energy because this is a strong field ligand. The value of CFSE for this complex is, so if this is a strong field ligand, all 5 would certainly go into it's a low spin complex, low spin. बच्चे लोग हाँ ना बोलो, सारा का सारा यहाँ पर अगर T2G में जाएगा, it will be like minus 0.4 into all 5 going here minus 2. Is 2 the common answer? I'll want the people to respond. हाँ sir. If possible with your name. 2 का आंसर 2 है. 2 का आंसर 2 है. Quickly, question 3. Something we began the topic with. NiCO4 is sp3, NiCN4 2 minus is dsp2. Naturally, यहाँ पर Cn is a SSL, which will make way for pairing and a low spin complex D2sp3. ये यहाँ पे WFL है, and here it's sp3d2. So 3. I would ideally want you people to give me the answer. 3 B Bombay. How many of you got B Bombay right? Tell me with your name. Sir Pravesh. Vanshika. Kanaya. Question 4. I repeat, you have a doubt, you can stop me. The spinoric magnetic moment of complex present in phalanx. Now, naturally, they're talking about the complex which is Cu plus 2. Now, in Cu plus 2, it's 3d9, and with 9, it'll have one unpaired electron, and the value of mu will be root over of 1 into 1 plus 2, the way we have been used to root 3 Bohr magneton, which is 1.73, and when it's the integral value, I think 2 is the right answer. 2 is the acceptable answer. How many of you got 2? Sir Pravesh. Vanshika. I would have wanted more names. Sounds good. Cobalt plus 2, I reckon. Chromium plus 3, I reckon. Now, cobalt plus 2 right away should, tell you about 3d7. Chromium plus 3 is 3d3. 3d7 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? अगर WFL है तो जल्दी बताओ तो. How many unpaired electron? 3. और यहाँ 3d3 में कितना unpaired electron? 3d3 में हमेशा 3 unpaired electron होता है. 3d3 में WFL SFL कोई बात ही नहीं होता. यहाँ पर नेचुरली ये WFL है, बट जो भी हो यहाँ पर हमेशा 3 unpaired electron होता है. यहाँ पर भी 3 unpaired electron, यहाँ पर भी 3 unpaired electron. ये भी √15 Bohr magneton, वो भी √15 Bohr magneton. The difference between number of unpaired electron and spin only magnetic moment is 0. How many of you got 5 का 0 right? And we'll want to move on to question 6. Question 6. Tell me how many of you got 5 right? Vanshika. Which is diamagnetic of these? Which is diamagnetic of these? A. Cu plus 2. Now Cu plus is the only possibility because Cu plus 2 में will be 3d9. वहां पर भी Fe plus 3 I reckon. नहीं Fe plus 3 है कि हाँ Fe यहाँ Fe plus है.
वी आर मोर यूज टू Fe6 यहाँ पर जो भी है यहाँ पे Fe प्लस है, पर Fe प्लस में भी वही है, मेरा मैक्सिमम क्या होगा 3d7 होगा, 3d6 4s2 होता है, 3d7 होगा, पेयर अप हो जाएगा तो भी। और यहाँ पर भी K4 Fe+2 है, बट इट्स अ वीक फील्ड लिगैंड, तो ये पेयर अप होगा नहीं। तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ Cu प्लस में 3d10 इज गोइंग टू बी पेयर्ड अप, 3d10 is going to be paired up, 6A आगरा, यहाँ पर all of them are going to be paired up, n का वैल्यू 0 होगा, 6 का A, how many figure 6 का A right, 7, 0. now shortest wavelength minimum will mean delta O maximum, and delta O maximum will be when the splitting is maximum. So, you know, the splitting is maximum is going to be in the case of COCN6 3 minus. Just I am being understood, because CN is the strongest field ligand here, और यहाँ पर CN6 में strongest field ligand में cobalt plus 3 will be 3d6, और strong field ligand में 3d6 में n का नंबर 0 होगा, सारा का सारा paired up होगा। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर 0 कौन बोला? Who said 0? Vanshika. Certainly that's the right answer. Certainly that's the right answer. 7-0 is the right answer. Other than Vanshika, who got it right? विश्वजीत। Again, I would have wanted more names, but we'll want to move on for the time being. Question 8, correct order of energy of absorption. Now you understand, if it's splitting more, so I'll compare En, ammonia and water. So in ABC, I'll believe A more than B more than C is the value of delta O. And if the splitting is more, the lambda is lesser. So A less than B less than C has to be the value of lambda absorbed. You know, this is exactly what I mean. ये T2G और EG के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा DD ट्रांजिशन में, डेल्टा जितना ज्यादा होगा उतना कम लैम्डा अब्सॉर्ब होगा। इट्स ऑल अबाउट E is equal to hc by lambda, E ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड विल वांट टू मूव ऑन। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाउ मेनी यू गॉट 8 का? आई थिंक आई एम डूइंग इट ऑल राइट। ओके, A more than B more than C is delta O, so C more than B more than A. C more than B more than A कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट इज चेंज। रेट का तो ये होना चाहिए। सर C लेस देन B लेस देन A होना चाहिए। स्प्लिटिंग का ऑर्डर है A more than B more than B, C है ना, तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर होना चाहिए C more than B more than A। सर एनर्जी एब्जॉर्प्शन का बात कर रहा है, वेवलेंथ का नहीं। ओ आई एम सो सॉरी, एनर्जी की बात कर रहा है, आई एम सो सॉरी, एनर्जी की बात कर रहा है। आई एम मोर यूज्ड टू लैम्डा ना, B more than B more than C। विल वांट टू मूव ऑन। बच्चे लोग सही बात है, रिएक्ट टू आंसर तो देखता है पर नाम बताता नहीं है इतना कभी। 8 आ गए राइट। who has got 8 right? 9? सर 9 का 1.73। 3. यहाँ पर लैटरली Fe+3 है, Fe+3 का मतलब होगा ये 3d5 है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड 3d5 का मतलब, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड 3d5 का मतलब दिस गोइंग टू बी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए नेचुरली म्यू का वैल्यू विल बी √3 1 into 1 plus 2 which is √3, √3 is 1.73, nearest interior यहाँ पर भी 2 ही होगा। So by now you get used to it। 9 का 2, how many you got 9 का 2 right? ये नेचुरली 4 माइनस है। How many you got 9 का 2 right? राशि। सर प्रवेश। How many you got 10 का 6 right? विश्वजीत। How many you got Vanshika. 10 का 6? I think 10 is again self-explanatory. These are good practice problems. Mn plus 2 is KT5, weak field ligand, all 5 unpaired. 5 unpaired will mean mu is equal to √35, closest integer is 6. 11, NiCN4 is square planar diamagnetic with DsP2 hybridization by nickel, but NiCO4 is tetrahedral paramagnetic. ये पैरामैग्नेटिक प्रॉब्लम है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि तुमको पता है ये भी डायमैग्नेटिक ही होता है।
NaCl4 2 minus NaCO4 both have same D configuration. Now this is not true. This is certainly sp3, and this is yes, this is sp3 and this is also sp3. Same geometry and are paramagnetic. ये paramagnetic है लेकिन ये diamagnetic है, तो ये भी false हो गया. I think I'm doing it all right. How many people got 11 का B right? How many people got 11 का B right? I won't name so that I can move faster than this. 12. So Fe plus 2 is going to be 3D6, and with strong field ligand, all are going to be paired up. This is going to be diamagnetic. Fe plus 3 3D5, even if it's paired up, it's going to be paramagnetic. एक unpaired होगा. Ti plus 3 scandium titanium. Is it 3D1? Please correct me if I'm going wrong. Scandium titanium. Titanium naturally is 3D2 4S2. तो यहाँ पे plus 3 अगर है तो यहाँ पे S का 2 गया, D का 1 3D1 fine. ये भी paramagnetic होगा. ये मेरे को पहचान में diamagnetic है. CO में CO plus 3 is 3D6. ये भी diamagnetic है. तो para यहाँ पे तो आंसर 2 है क्या? How many you got 2 right? These two are paramagnetic. These two are paramagnetic. How many you got 2 right? Vanshika. विश्वजीत. 12 2, 12 2, 12 2, 12 2. These are good problems for practice. Maximum stabilization due to crystal field. Maximum stabilization certainly will be the case when delta O is maximum. And delta O is maximum for the strongest field ligand, which is cyanide here. Simple as it sounds. 13C Calcutta. How many of you got 13C Calcutta right? Maximum stabilization due to crystal field is naturally when the splitting is maximum. That splitting is actually for stabilization only. वो जो splitting होता है, it brings stability into the system, so that you know the high energy zone and low energy zone are clearly demarcated. So that's all in the interest of the formation of the complex. So जितना stable होगा, जितना strong field ligand होगा, उतना उसका stability भी ज़्यादा होगा. 14. B Bombay. So if I go with B Bombay and I'll check it right now, how many of you got B right by the way? यहाँ पे N5 है क्योंकि weak field ligand है, तो इसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रहना चाहिए. Fe यहाँ पर +3 है, Fe +3 with a strong field ligand, 3D5 with a strong field ligand, N is equal to 1. Mn हाई स्पिन बोलिए दिया है, तो ये Mn+3 है. यहाँ पे थोड़ा सा अनयूजुअल है बिकॉज जनरली Mn+2 होता है, 3D5 होता है, तो 3D4 होगा. 3D4 हाई स्पिन मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे N का वैल्यू 4 होना चाहिए. और लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है. लास्ट वाला इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये केस में क्लास में बताता हूँ. आई टॉक अबाउट दिस वेरी स्पेसिफिकली कि Mn+2 की जगह Mn+3 यहाँ पे 3D4 है, और ये भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी DF4 का पूरा पेयरिंग नहीं होता. याद है मैं बताया था यहाँ पे D3D4 ऐसा होगा 1 2 3, अगर कितने स्प्लिटिंग हो जाए पार्टली पेयर्ड होता है. तो SFL में भी N का वैल्यू 2 ही होता है. याद है, इसी ने बताया था. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. तो द आंसर विल बी सबसे कम B, फिर D, फिर C, फिर A. 14 B Bombay sounds good. Vansika gave the right answer. Who else is the one who else got the right answer? 14 B Bombay right. Please tell me. Anything Vishwajit. you want me to repeat? Vishwajit seems to be doing good. Just a few. We'll want to talk about question 15 now. So far so good, I believe. 15 में ना, we have a knack of understanding कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पहले सारा अमोनिया को अंदर रखेंगे. और कोबाल्टी कॉम्प्लेक्सेस का नेचुरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो यहाँ पर एक ही क्लोरीन बाहर रहेगा. दूसरा वाला में वाटर को हम लोग अंदर रखेंगे और यहाँ पर मान लो 2 क्लोरीन बाहर रहेगा. PTCl4 2HCl H2PTCl6 है. H2PTCl6 is as good as a PTCl6 2 minus. ये सब अगेन with time we understand. PT+4 का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. प्लैटिनम का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 होता है, 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पर 2 क्लोरीन बाहर है, यहाँ पर 1 क्लोरीन बाहर है, तो बोलता है जिसमें 2 मोल AgCl बनेगा, दैट इज दिस कंपाउंड. एंड इन दिस कंपाउंड Na+2 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, ये 3D8 होता है. द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3D8 के लिए N का वैल्यू 2 होता है. दिस इज √8 which is close to 3.
Integral value will be 3. How many you got? 15 got 3, right? See, if you want me to repeat, I can repeat. That's not a problem. If you want me to repeat, I can repeat, but I think it's pretty understandable. बच्चे लोग, इसके आंसर 3 मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है सबको. सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स लिखते कैसे हैं वो हम लोग को समझना पड़ेगा. सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स लिखते कैसे हैं वो मेरे को समझना पड़ेगा. आई थिंक दिस अंडरस्टूड नाउ. NiH2O6Cl2 इज द ओनली वन जहां पर 2 क्लोरीन मिलेगा तुमको विद सिल्वर नाइट्रेट. And in NiH2O6Cl2, naturally Ni plus 2 would mean that it's 3D8. It's 3D8. CD8 में हमेशा n का वैल्यू 2 ही होता है. रूट 8 हमेशा 3 के आसपास ही होगा इंटीग्रल वैल्यू. See, nobody is responding, so we'll assume that being understood. यहाँ पे कोबाल्ट को एक्सिस अमोनिया के साथ मिलेंगे तो ये CuNH3 होगा, और बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन भी है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा कोबाल्ट प्लस 3. दिस वाज क्वेश्चन 1 व्हिच वी बिगन विद. CD6 और अमोनिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे काम करता है. So number of electrons in T2G would be certainly 1, 2, 3, 4, 5, 6. You know, low spin complex, and यहाँ पे number of electrons present in T2G apparatus is 6. Still, I'll be willing to know how many of you got it right. How many of you got right? 6. कितना लोग का राइट आया? 17. पढ़ने के लिए मैं 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दूंगा क्योंकि 17 में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है. 16 आई थिंक सबको समझ में आ रहा है. I'll give you a little while to solve 19, 17 थोड़ा कैलकुलेशन है. Anyone who has the answer for 17, I'll give you a minute to read the question. To me, it looks like a lot of calculation. To me, it looks like a lot of calculation. I have done it a few times in the past as well, so I kind of recall the answer. If somebody has done it using a calculator or something, please tell me what is the answer that you have got. Again, not a great question. 167 हुआ क्या सर? नहीं, ये 776 या 766 ऐसा आता है. 766 होगा शायद. है तो ये बहुत झमेलिया क्वेश्चन. यहाँ पर 2 चीज समझ के रखना है. एक तो समझ के रखना है कि E is equal to hc by lambda मेरे को पता होना चाहिए, और फिर एक रिजल्ट मैं क्लास में बताता हूँ कि डेल्टा टी जो होता है टेट्राहेड्रल के लिए वो 4/9 टाइम्स डेल्टा होता है. सर 766 आ रहा है. 766 ही है इसका आंसर. 766 ही है, बट बहुत झमेला है. कि बिना कैलकुलेटर का होगा नहीं. दिस इज अ रियल बैड क्वेश्चन. सर बहुत सारा कैलकुलेशन है इसमें. कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होता है. भगवान से मना वैसा क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में. मतलब मैं ऐसे कितना करूंगा बोलो, ये मैं क्या कर सकता हूँ. आई एम ऑल्सो हेल्पलेस. I wonder, you know, who is the idiot who comes up with these questions in the real exam? God bless that, you know, dirty mind. क्या किया है बोलो, इतना कौन कैलकुलेट करेगा रियल एग्जाम में. और इतना करने के बाद भी तुमको इससे 9/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो वैल्यू आएगा डेल्टा टी के लिए आएगा, डेल्टा वो निकालना है. रियल बैड क्वेश्चन, बट if I could help you more about, you know, the solution of this. hc by lambda is routine, you know, routine formula 600 नैनोमीटर के लिए, पर बहुत झमेला है इसमें यार. अगर बहुत टाइम बचा हुआ है तभी शायद करने जाएंगे, वरना छोड़ ही देंगे. सर बट फॉर एन इंस्टेंस वी कैन आल्सो से दैट पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे. मतलब तू मेरे को बता ना प्लीज. आई बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन इफ यू टेल मी कैसे कटेगा. मेरी में इतना पेशेंस नहीं. तू बता कैसे कटेगा. ऊपर 6.63 को मिला करके 20 लिख लेंगे. 4 से कट जाएगा 5 और तो 20 लिख दो. हाँ, और 9 और 600 कट जाएगा. 9 और 6, 3 और 2. 3 और 2, तो इसको मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, 3 और नीचे यहाँ पे 2 200 ले और लूँ, बाकी 10 एडजस्ट कर लेंगे. 4 ले लूँ. हाँ 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 हाँ. आ रहा है इससे 766 आ रहा है. मतलब इंटू 10⁻21 में 766 आ रहा है. ये तो 34 और ये 9 और 8 17 हो गया, तो 10⁻−17 हो गया. तो मैं इसमें मान लो 1000 और मल्टीप्लाई कर दूंगा. सर 750 के अराउंड आ रहा है, बट हाँ मतलब 766 चाहिए होगा यार.
कि 767 होने से राइट आंसर आएगा। 767 में भी नंबर नहीं मिलेगा बिकॉज का ऑफिशियल आंसर 766 होगा। ये एकदम मतलब दिस इज प्रिपोस्टरस। मैं क्या बोलूं, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन करेगा। थर्ड ऑफ स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम CD3। कुछ बी। गड़बड़ करूंगा तो बोलना, कुछ गड़बड़ करूंगा तो बोलना। CD4, ठीक है। तो हम लोग बिलीव करेंगे नॉर्मल स्टेट में फिल हो रहा है। यहाँ पर नॉर्मल स्टेट में इसका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका 4 अनपेयर्ड चार। इलेक्ट्रॉन और इसका चार। भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लोएस्ट स्पिन मतलब बी। बी बॉम्बे। 18 is more like you know periodic table question. 19 Two. shortest wavelength. Shortest wavelength where naturally lambda O is maximum। यही करेंगे तो। हाँ, अरे बोलो भाई। ठीक कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए सब अच्छा है। √3 इंटीग्रल वैल्यू मेरे को 2 आदत पड़ गया इसका। ठीक किया हो देखो तो। ठीक किया हूँ। हाँ सर। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। ऑस्मियम सबसे नीचे है ना। ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का है। नीचे जाने से डेल्टा ओ बढ़ता है, याद है? नीचे जाने से डेल्टा ओ बढ़ता है। डेल्टा ओ इंक्रीज होता है ऑन द ग्राफ। तो सब में बताया था। इसलिए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा काम करने लगता है। बहुत सारा वीक फील्ड लिगेंड नीचे वाले मेंबर के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा काम करने लगता है। You have a problem with any question or the solution, you can ask me, else we'll want to move on. Please tell me, are you all happy with the Delhi? Yes, sir. I'll see which is the one which is the lowest 5D वाला सबसे ज़्यादा स्पीड करेगा। Spin only magnetic moment with B2 plus। B2 plus में भी तो वही है ना यार कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है ये, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। अच्छा, ये उसके B2 प्लस के पहले भी एक क्वेश्चन है। minus 0.8 delta O and 3.87. 3.87 is like √15 for which n is equal to 3 and minus 0. delta 8 होगा। अरे ये √8 होगा, सॉरी ये √8 होगा। 3.87 दो अनपेयर्ड है और ये माइनस 0.8 डेल्टा ओ होगा अगर ये P2G सर में थ्री दोनों के हैं। पॉइंट एट सेवन रूट फिफ्टीन ही होगा। हाँ 3.87 √15 ही होगा। अरे हाँ, ये गड़बड़ हो गया। तुम बचता कैसे? आंसर क्या है बोलना तू बीच में। आंसर तो तू बताता नहीं, सॉल्व किया तो आंसर बता भाई। क्या होगा इसका आंसर? सॉल्व किया है? नहीं, √15 की एन का वैल्यू 3 हो गया, एन का वैल्यू 3 हो गया। और क्या बोलता है इसका? CFAC माइनस 0. डेल्टा हुआ है। मैं एक्चुअली ना -0.8 देख के वॉज वेरी टेम्पटेड कि वो कर दूं। क्या बोलूं? -0.8 इंटू -0.4 इंटू 2 कर दूं। तो ये कैसे होगा जहां पर 3 अनपेयर्ड हो। अरे कोई सॉल्व किया इसका तो बताओ। सर डी दिल्ली है। मतलब 3D7 में ऐसा होता है क्या? हम्म
हाँ ठीक है दोस्त, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। CD7 में होगा ये, दिल्ली CD7 में होगा। सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? रेयर फ्यू गिव द राइट आंसर ना। नहीं सर। कौन बोला दिल्ली? सर वंशिका। वंशिका तू बोली थी दिल्ली? हाँ सर। समझ में मतलब दिस इज गुड दैट यू आंसर्ड एंड यू आंसर्ड सो परफेक्टली। विदित भाई भी है क्लास में। सुरभि। तो वंशिका अच्छा कर रही है, ठीक है। बाकी लोग को समझ में तो आ गया ना। मैं ना राइट में CD2 खोज रहा था, बिकॉज CD2 में मेरे को 2 करके 0.8 मिल जाता। बट यू नो समबडी अंडरस्टैंडिंग CD7 में भी यू नो विल हैव -0.8 O एंड इवेंचुअली 3 unpaired electron इज कमेंटेबल। 21 D टेल इज अ गुड आंसर, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में है, लेकिन बच्चा वाला ही। B2 प्लस में मेरे को लगता है एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये सबको समझ में आता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू का वैल्यू हो जाएगा √3 विच इज 1.73 दिया हुआ भी होता है जनरली। 1.73 को अगर 10 to the power -2 मिल जाए तो 173 इसका आंसर होगा। 22 173, आर यू हैप्पी विद दिस? 23 नेक्स्ट वन। 23 यस प्लीज। ये क्यों ऐसे हिलने डुलने लग गया? ए 23 अभी तक तो ठीक था। 23 सर √35 स्ट्रॉन्ग है। फील्ड लिगेंड है इतना। अरे ये क्या हो रहा है? ये -2 है, ये +3 है, 3D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यार। कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयर अप कर दो। डी होना चाहिए ना। कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। सर पेयरअप करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा? तो पेयर अप करेंगे 1 आ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू तो √3 होगा ना। एन का वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो म्यू तो √3 होगा। 23 का बात कर रहा हूँ। अरे ठीक ही तो बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, सॉरी। ठीक है, सॉरी वाला बात नहीं है, मतलब ऐसा ब्लंडर मत कर। और इतना क्लास में मिस किया है, होप तो वीडियो वीडियो देख करके और रन अप एंड रेडी फॉर द टेस्ट। एक बार 24 पढ़ो तो सब लोग। इसमें ना सर थोड़ा ऑप्शन सा बी है। कुछ, इसमें ये होगा थोड़ा क्या? सा ना नहीं नहीं, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, मैं बताऊं क्यों। ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है सल्फाइड का। कोई भी सल्फाइड को ना सोडा एक्सट्रैक्ट करके हाँ सोडियम सर। सल्फाइड बना देते हैं यस। और Na2FeCN5NO के साथ में रिएक्ट कराते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, सल्फाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ये बनता है Na4FeCN5NOS। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एक स्टैंडर्ड लैब रिएजेंट है। यहाँ पर NO+1 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयरन +1 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, +2 +1 +3 +2 होता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हो गया, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। और ये सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चन का डी है, दिस इज वायलेट। ये सब लोग किया होगा, ये तो स्कूल लैब में भी कराते हैं। ये सल्फाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है, बच्चे लोग हाँ ना बोलो। I hope you have done this. It's a confirmatory test of sulfide with sodium nitrochloride. It gives you a violet purple color complex which is Na4FeCN5NOS. सिंपल भी है परफॉर्म करने में, 2 और 2 4 जोड़ दो, सल्फर को अंदर घुसा दो। ये सिंपल सा टेस्ट है। अरे कितने लोग लैब में किए हो मेरे को बताओ तो। 11 में सभी लोग करता है ये। बोलता नहीं है, झूठ बोल रहा है सब। इसका ए होगा, ये ऑब्वियस है। अच्छा 25 का ए कितना लोग बोल रहे हैं बताओ। फिर कोई नहीं बोल रहा क्या? यहाँ तक सबका गाड़ी का तेल खत्म हो गया क्या? इसके बाद लगता है कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया यार। मतलब 24
तो एकदम कॉमन सिंपल सा टेस्ट है, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो। 25 ऐसा लग रहा है कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया है। स्टेबिलिटी जैसा होगा अगर मान लो मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जाऊँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूरा क्लास में लिखवाया हूँ। जो लोग क्लास में नहीं आए वो लोग नोट्स वोट्स देख करके, वीडियो देख करके सब याद कर लो, कैसे कैसे करके मैं सब याद कराया हूँ। एक बार सचिन कल स्कूल से फरार, ऑक्सलेट को हाइड्रोक्साइड से, पानी से प्यार, पानी से प्यार, और पहले और है फिर ऑक्सलेट है, तो पानी से प्यार। उड़ता अमोनिया, नाश्ता, क्या क्या था वो सब याद है? अमोनिया, नाश्ता, नाश्ता अमोनिया इन, क्या था, नॉर्थ कनाडा कोलंबिया। ये पूरा बताया था, ये सब याद है ना सबको? एक बार सचिन क्लास से फरार, और ऑक्सलेट को पानी से प्यार, नाश्ता, उड़ता, उड़ता मतलब यहाँ पर बीच में एक इरिटिए था, अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो, कोलंबिया, कोलंबो। ये सब कराया था। तो पेट्रोकेमिकल सीरीज से जाना है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, इसके बाद सबका गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। अब मैं सब कैंसर बता देता हूँ, या तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। Mn+3, 3d4, जो भी है 3d4 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि या तो 4 1 पेड होगा, यहाँ पर 4 1 पेड होगा, sp3d2 होगा, sp3d2 होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। हाउ मेनी पीको? 26 का डी राइट। वंशिका इट रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल पैरामैग्नेटिक, मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक देख के समझ में आ जाता है 3d5 है। बाकी यहाँ पर ये -3 हो गया, समझ में आता है, बाकी सारा का सारा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है। हो गया, बस हो गया, सबका हो गया, समझ में आ गया। 28 टाइटेनियम +3, वैनेडियम +2, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +3, CD इधर हो, ठीक सर बोल रहा हूँ इसका तो बी 3d होगा। 4s2, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d1, स्कैंडियम 3d2, फिर s2, प्लस मतलब ये 3d1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 मतलब 0, इसका रूट 1.73, 1.730, बी बॉम्बे। और यहाँ पर वो बीच वाला हो जाएगा, स्कैंडियम वैनेडियम में 3d2, 3d3, 4s2, तो 3d3 हो गया, 3 अनपेयर्ड, रूट 15। ठीक है, बी बॉम्बे 28 का बी बॉम्बे। 29 यहाँ पे कोबाल्टो है, यहाँ पे कोबाल्ट टी है, कोबाल्टो इज 3d7, हियर इज 3d6, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, वहां पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ पे सारा पेयर्ड अप, यहाँ पर एन का वैल्यू 1 होगा, नेचुरली आंसर 1 ही होगा इसका। आई होप आई एम नॉट डूइंग अ मिस्टेक हियर। वन ही आंसर है ना 151 का। कोबाल्टी में सारा पेयर्ड अप हो जाएगा, यहाँ पे एन का वैल्यू 0 होगा, तो दोनों मिलाकर के 1 ही होगा। लास्ट dsp2 फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉलोइंग, dsp2 ये dsp2 होता है बी बॉम्बे। चलो कहानी खत्म। ठीक है, 30 कितना लोग का राइट हुआ? अब 30 तो देख के बता दो, 30 तो चालू किए होगे उल्टा से, मतलब 30 देखे ही होगे, हो गया होगा, पहला क्लास में बता देता हूँ। हाउ मेनी गॉट 30 राइट? टेल मी नेम्स। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड दैट 30 का बी इज राइट? यू ऑल अंडरस्टैंड 30 का बी इज राइट? हाँ सर समझ गए। हाँ, मतलब इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। चलो आज काफी लेट भी हो गया, थैंकफुली वी कैन कंप्लीट ऑल ऑफ दिस, वी कुड कंप्लीट ऑल ऑफ दिस इन अराउंड 40 मिनट्स। इसके बाद लंबा काम है, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म का लंबा प्रॉब्लम शीट है 86 क्वेश्चंस का, पर वो भी मैं दो क्लास के अंदर में, 2-3 क्लास के अंदर में करवा दूंगा। प्रिंट आउट लो, अटेम्प्ट करके रखो, और पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करो। कंडक्टेंस का प्रॉब्लम शीट में रात में ही भेज दूंगा। मिलते हैं, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय, गुड, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।